Hello everyone, welcome to Biology by My Way. Today we are going to discuss a very important topic known as ecological succession. Now what is ecological succession? Ecological succession is the process of gradual change in the composition of an ecosystem over time. So what is ecological succession? Basically it is the process where a disturbed ecosystem is converted into a fertile ecosystem. It occurs due to natural disturbances or human-induced changes. Understanding succession is crucial for conservation and restoration efforts. So succession is a series of processes which makes the community reach its climax stage. And this transition phase of reaching an ecosystem to a climax stage is known as succession. So as you can see from these pictures, the succession after the Yellowstone fires, there was an ecosystem which has been disturbed by wildfire, and it has been converted into a full-fledged biodiversity or a full-fledged restored ecosystem. So this restoration of ecosystem happens through the process of ecological succession. Similar is the case at this succession at Mount St. Helens. See, there was a disturbed ecosystem which has been converted into a restored ecosystem. And the conversion of this disturbed habitat into a restored ecosystem is known as succession. So the transition process that occurs during this state, that is changing of a disturbed ecosystem to a restored ecosystem, is known as succession. Now, what are the factors affecting succession? Many factors can influence the process of ecological succession. These include disturbance, climate, soil, biotic factors such as competition and predations. So सक्सेशन हमारा क्या है? सक्सेशन बेसिकली क्या होता है कि जैसे कि हमारे पास कोई भी बैरन एरिया है, वो हमारा रिस्टोर्ड इकोसिस्टम यानी कि उसकी जो फंक्शनल कैरेक्टरिस्टिक्स है वो दोबारा से रिस्टोर हो जाती हैं, उसको हम वो किस प्रोसेस से होती हैं? वो हमारी सक्सेशन के प्रोसेस से होती हैं. तो किसी भी कम्युनिटी को अपनी क्लाइमेक्स स्टेज तक जो प्रोसेस पहुंचाता है उसको ही हम क्या बोलते हैं? उसको हम सक्सेशन बोलते हैं. अब ये कौन से फैक्टर्स हैं जो सक्सेशन को अफेक्ट करते हैं? दिस में भी डेंसिटी डिपेंडेंट और डेंसिटी इंडिपेंडेंट. तो डेंसिटी डिपेंडेंट हमारी पॉपुलेशन वगैरह हो गई और डेंसिटी इंडिपेंडेंट हमारे क्या हो गए? जैसे कि कंपटीशन एंड प्रेडेशन. Understanding these factors can help us predict how ecosystems will change over time and how we can manage them to promote biodiversity. So see, there's a cycle which is showing the process of succession. See, it is a transition process. तो यहाँ पे क्या हो रहा है? यहाँ पे सबसे पहली स्टेज हमारी डिस्टर्बेंस है in case of secondary succession, whereas in case of primary succession यहाँ पे क्या होता है? यहाँ पे न्यूटेड सॉइल प्रेजेंट रहती है, यहाँ पे या फिर नो सॉइल प्रेजेंट रहती है. So see, this cycle starts from disturbance, then it creates favorable conditions so that grasses grow. तो grasses हमारी क्या हो गई? पहली स्पीशीज जो यहाँ आके ऑक्यूपाई कर गई. Then it is converted to shrubs. Then shrubs make it comfortable so that small trees can grow. And then finally, small trees are converted to climax forest. So see, this is a process. This is an ongoing cycle that is making the disturbed ecosystem restore its functions by reaching the stage to climax forest. So this whole transition phase is known as succession. Now, what are the types of succession? Firstly, we'll start with primary succession. प्राइमरी सक्सेशन बेसिकली हैपेंस ऑन एन बैरन एरिया. तो यहाँ पे क्या होता है? प्राइमरी सक्सेशन वहां पे होता है जहां पे हमारी जो इकोसिस्टम है वहां पे कुछ भी नहीं है. वो बेसिकली एक न्यूडेड एरिया से स्टार्ट होता है या कि जहां पे नो सॉइल प्रेजेंट होता है. सेकेंडरी सक्सेशन, डेवलपमेंट ऑफ प्लांट कम्युनिटी ऑन डिस्टर्ब्ड एरिया. यहाँ पे क्या होता है? यहाँ पे एक डिस्टर्ब्ड इकोसिस्टम होता है. जैसे कि यहाँ पे पहले कोई इकोसिस्टम था जो किसी भी रीजन से, जैसे वाइल्ड फायर हो गया, आपका लॉगिंग हो गया, किसी भी रीजन से वो डिस्टर्ब हो चुका है. फिर जो दोबारा वो रिस्टोर होता है इकोसिस्टम, उसको हम क्या बोलते हैं? सेकेंडरी सक्सेशन. Now, autogenic is done by the biotic components. Allogenic is by the abiotic. Autotrophic is by medium rich in inorganic substances, and heterotrophic, which is rich in organic substances. Now, we'll start with the primary succession. Primary succession, as I have told you, starts from a barren area or an area where no soil is present. So primary succession occurs in area where there is no soil, such as after a volcanic eruption or glacier retreat. The first organisms to colonize the area are known as pioneer species such as lichens and mosses. तो यहाँ पे क्या हुआ? यहाँ पे एक एरिया है जहाँ पे कुछ भी प्रेजेंट नहीं है. तो ये जो अपने आप को रिस्टोर करेगा ये इकोसिस्टम और क्लाइमेक्स कम्युनिटी तक ये स्टेज पहुंचेगा, इसको हम क्या बोलेंगे? प्राइमरी सक्सेशन. और जो पहली स्पीशीज यहाँ पे आके कॉलोनाइज करती हैं, जैसे कि हमारी सबसे पहली स्पीशीज आकर के लाइकेंस एंड मॉसेस यहाँ पे आके कॉलोनाइज करेंगे, तो उसको हम क्या बोलेंगे? पाइनियर स्पीशीज.
These organisms break down rock and create soil, allowing other plants to grow. Over time, the ecosystem becomes more complex and diverse. तो जैसे यहाँ पे क्या हुआ, यहाँ पे पहले कुछ भी हमारे पास नो सॉइल है या न्यूडेड एरिया है, फिर यहाँ पे क्या हुआ, सबसे पहले स्पीशीज आकर के कॉलोनाइज करी, तो ये हमारी क्या हो गई, पायनियर स्पीशीज यानी कि लाइकेंस एंड मॉसेज हुए। फिर यहाँ पे क्या हुआ, लाइकेंस एंड मॉसेज ने धीरे धीरे ग्रासेस को शेप दिया, मतलब एनवायरमेंटल कंडीशंस को ऐसा मोल्ड किया ताकि ग्रासेस आकर के इन्वेट करें। फिर ग्रासेस के बाद यहाँ पे श्रब्स हो गए, फिर श्रब्स के बाद हमारे पास क्लाइमेक्स कम्युनिटी, या फिर पहले सबसे पहले तो शेड इंटॉलरेंट स्पीशीज ग्रो करी, जैसे ट्रीज हुए छोटे छोटे। फिर उसके बाद हमारे पास क्या हुआ, शेड टॉलरेंट यानी कि बिगर फॉरेस्ट हमारे पास, बिगर ट्रीज हमारे पास यहाँ पे डेवलप होने लगे। तो ये क्लाइमेक्स कम्युनिटी तक पहुंच गया। तो ये कहाँ से स्टार्ट हुआ, हमारे नो सॉइल यानी कि मैच्योर एरिया नहीं था, यहाँ पे न्यूडेड एरिया था, तो यहाँ से स्टार्ट हुआ। तो इसी ट्रांजिशन प्रोसेस को हम क्या बोलते हैं, प्राइमरी सक्सेशन। That would be more clear with this diagram. So see, it starts from a bare rock. यहाँ पे कुछ भी प्रेजेंट नहीं है। सबसे पहले यहाँ पे क्या हुआ, यहाँ पे आके एक स्पीशीज ने कॉलोनाइज किया, लाइकेंस एंड मॉसेस, तो ये हमारी क्या हो गई, पायनियर स्पीशीज हो गई। देन क्या हुआ, पायनियर स्पीशीज ने क्या किया, हमारे लिए जगह बनाई जो कि हमारे स्मॉल एनुअल प्लांट्स आकर के ग्रो करे। फिर स्मॉल एनुअल प्लांट्स ने जगह बनाई, एनवायरमेंटल कंडीशंस को फेवरेबल किया ताकि वो ग्रासेस एंड पेरिनियल्स ग्रो करें। देन ग्रासेस एंड पेरिनियल्स के बाद क्या हुआ, यहाँ पे श्रब्स आकर के ग्रो करे या फिर शेड इंटॉलरेंट स्पीशीज आकर के ग्रो करी। Then the final stage reaches when the shade intolerant species are replaced by the shade tolerant species. तो finally reaching its climax community. तो प्राइमरी सक्सेशन में क्या हुआ कि ये हमारी बेयर रॉक से स्टार्ट हुई और एक फुल फ्लेश्ड बायोडाइवर्सिटी के साथ जो फॉरेस्ट हमें मिला क्लाइमेक्स कम्युनिटी में। तो इसी ट्रांजिशन स्टेज को हम क्या बोलते हैं, प्राइमरी सक्सेशन। और ये होता है कि ये फ्यू डेज या वीक का प्रोसेस नहीं होता, ये हंड्रेड्स ऑफ ईयर्स इसको लगते हैं किसी भी कम्युनिटी को अपने क्लाइमेक्स स्टेज तक पहुंचने में। Now secondary succession. Secondary succession occurs in areas where there is already soil but the ecosystem has been disturbed due to wildfire or logging. तो as I've told you कि primary succession में क्या हम देख रहे थे कि bare rock था और या no soil था, तो वहां से जो प्रोसेस स्टार्ट होता है और क्लाइमेक्स कम्युनिटी तक पहुंचता है उसको हम क्या बोलते हैं, प्राइमरी सक्सेशन। बट इन केस ऑफ सेकेंडरी सक्सेशन यहाँ पे क्या हो रहा है, यहाँ पे डिस्टर्ब्ड इकोसिस्टम है और फिर दोबारा से ये जो रिस्टोर करेगा इसको हम क्या बोलेंगे, सेकेंडरी सक्सेशन। और क्लाइमेक्स स्टेज तक जाएगा तो उसको हम क्या बोलेंगे, सेकेंडरी सक्सेशन। The process is similar to primary succession, but it starts with different pioneer species. The ecosystems eventually become more diverse and stable over time. So the basic difference between primary succession and secondary succession में क्या होता है कि ये नो सॉइल यानी कि यहाँ पे बेयर एरिया से स्टार्ट होता है और यहाँ पे क्या रहता है कि ये डिस्टर्ब्ड इकोसिस्टम से स्टार्ट होता है। नाउ सी, यहाँ पे क्या था, यहाँ पे एक इकोसिस्टम था जो कि वाइल्ड फायर से डिस्टर्ब हो गया है, किसी भी नेचुरल रीजन से ये डिस्टर्ब हो गया है। अब यहाँ से जो रिस्टोरेशन स्टार्ट होगा और क्लाइमेक्स कम्युनिटी तक ये पहुंचेगा उसको हम क्या बोलेंगे, सेकेंडरी सक्सेशन। तो यहाँ पे क्या हुआ, यहाँ पे 0 ईयर्स तक कुछ नहीं हुआ, देन 1 to 2 ईयर्स में स्पीशीज धीरे धीरे आके यहाँ कॉलोनाइज करने लगी। फिर यहाँ पे क्या हुआ, ग्रासेस एंड फिर यहाँ पे कंडीशंस फेवरेबल हुई, ग्रासेस एंड पेरिनियल्स ग्रो करने लगे। तो सबसे पहली पायनियर स्पीशीज यहाँ पे ग्रासेस एंड पेरिनियल्स हुई। फिर उसके बाद ये शेड इंटॉलरेंट स्पीशीज को ग्रो किया, ग्रासेस, श्रब्स, पाइन्स, यंग ओक एंड यहाँ पे क्या हुआ, ग्रासेस एंड पेरिनियल्स ने कंडीशंस फेवरेबल करी ताकि श्रब्स एंड पाइन्स ग्रो कर सकें। फिर उसके बाद क्या हुआ, इसके बाद मैच्योर ओक एंड हिकरी फॉरेस्ट डेवलप हो गया क्लाइमेक्स कम्युनिटी में। तो इसने इसके लिए फेवरेबल की कंडीशंस ताकि यहाँ पे ये ग्रो कर सके। तो यही सक्सेशन का प्रोसेस जो कि एक डिस्टर्ब्ड इकोसिस्टम से स्टार्ट होकर के अपनी क्लाइमेक्स कम्युनिटी तक पहुंचता है उसको हम क्या बोलते हैं, सेकेंडरी सक्सेशन। नाउ व्हाट इज द प्रोसेस ऑफ सेकेंडरी सक्सेशन or ecological succession? Ecological succession is the process by which the mix of species and habitats changes over time in 5 stages. Now we'll get to know what are these stages through which succession occurs. So the first stage is nudation. Nudation is the first stage of succession. It is the formation of a nude or a bare area. It results from flooding, erosion, landslide, volcanic eruption or other artificial or natural reason. तो यहाँ पे क्या हुआ, पहली स्टेज हमारे पास न्यूडेशन है। न्यूडेशन का मतलब क्या हुआ, न्यूडेड एरिया है, यहाँ पे कुछ भी प्रेजेंट नहीं है। Then second stage is invasion. Invasion is the arrival of propagules or the reproductive bodies of different organisms that can settle on the bare area. अब यहाँ पे क्या हुआ, सेकेंड स्टेज हमारे पास इन्वेजन हुआ। हमारे पास एरिया तो है पर स्पीशीज नहीं है। फिर यहाँ धीरे धीरे इन्वेडेड एरियाज जो है। Now the second stage is invasion.
अब यहाँ पे हमारे पास एरिया प्रेजेंट है लेकिन हमारे पास स्पीशीज नहीं है कॉलोनाइज करने के लिए, तो ये क्या होता है, एक न्यूडेड एरिया पे स्पीशीज आकर के कॉलोनाइज करती है। कैसे? थ्रू रिप्रोडक्टिव बॉडीज के थ्रू, यानी कि स्पोर्स के थ्रू, प्रोपोगेल्स के थ्रू यहाँ आकर स्पीशीज कॉलोनाइज करती है। नाउ थर्ड स्टेज इज कॉम्पिटिशन एंड कोएक्शन. Competition and coaction means that the population of the invasive species increases in number within a limited space. तो यहाँ पे क्या हुआ, अब यहाँ पे न्यूडेड एरिया में स्पीशीज आकर के कॉलोनाइज करने लगी, तो यहाँ पे क्या हुआ कि अब कंपटीशन होगा फूड एंड रिसोर्स के लिए, तो इसी स्टेज को हम क्या बोलते हैं, कंपटीशन स्टेज. Then after the competition occurs the reaction stage in which the organisms grow in a place. The environment molds itself under the organism's influence. It means that the area's temperature, land, water and soil change. अब क्या हुआ, यहाँ पे एरिया था हमारे पास, स्पीशीज आकर के कॉलोनाइज करी, उन स्पीशीज में आपस में कंपटीशन हुआ और फिर एनवायरमेंटल कंडीशंस ने अपने आप को स्पीशीज के अकॉर्डिंग मोल्ड कर लिया ताकि वो स्टेबलाइज कर सके और क्लाइमेक्स कम्युनिटी तक ये पहुंच सके. Now fifth stage is the stabilization or climax stage, that is the last stage. The climax or stabilized stage is the final or terminal stage of ecological succession. The terminal or final communities referred to as the climate community reach this stage, becomes more stable and stay there for longer. जैसे कि हमारे एग्जाम्पल में क्या है, ग्रासलैंड है, फॉरेस्ट है या कोरल रीफ्स है, एंड फाइनली यहाँ पे क्या हुआ, कम्युनिटी अपने आप को स्टेबलाइज कर चुकी है, यानी कि सक्सेशन यहाँ पे स्टॉप हो चुका है और अपनी क्लाइमेक्स स्टेज तक यह कम्युनिटी पहुंच चुकी है. सो दीज आर द 5 स्टेजेस ऑफ सक्सेशन. अब यहाँ देखिए, नाउ सी दिस इज द फर्स्ट स्टेज इज न्यूडेशन. यहाँ पे क्या हुआ कि सबसे पहले कोई भी न्यूडेड एरिया था हमारे पास जहाँ पे स्पीशीज नहीं प्रेजेंट है. देन सेकेंड स्टेज हमारी क्या हुई, इन्वेजन. अब यहाँ पे हमारे पास एरिया है लेकिन स्पीशीज नहीं है, तो स्पीशीज धीरे धीरे आकर के यहाँ पे कोलोनाइज करती हैं. कैसे? स्पोर्स के थ्रू या प्रोपोगेल्स के थ्रू धीरे धीरे आकर के इन्वेड करती हैं. दैट इज व्हाई दिस प्रोसेस नोन एज इन्वेजन. क्योंकि ये न्यूडेड एरिया पे प्रेजेंट होता है तो ये क्या हो गया, न्यूडेशन. न्यूडेशन हो गया, देन इन्वेजन. नाउ थर्ड इज कॉम्पिटिशन एंड कोएक्शन. अब क्या हुआ, हमारे पास एरिया भी है, स्पीशीज भी है, तो क्या हुआ, यहाँ पे फूड एंड रिसोर्स होगा, यहाँ पे लिमिटेड स्पेस है, तो जो स्पीशीज इसमें सर्वाइव कर जाती है, कॉम्पिटिशन होता है, वो अपने आप को धीरे धीरे स्टेबलाइज करती हैं. देन फोर्थ कम्स द रिएक्शन स्टेज. अब यहाँ पे क्या हुआ कि हमारे पास एरिया भी है, हमारे पास स्पीशीज भी हैं, अपने आप को ये रख भी चुकी है, कॉलोनाइज भी कर चुकी हैं. देन कम्स द रिएक्शन स्टेज, जहाँ पे एनवायरमेंटल कंडीशंस अपने आप को स्पीशीज के अकॉर्डिंग मोल्ड करती हैं. देन कम्स द फाइनल स्टेज, दैट इज स्टेबलाइजेशन. अब यहाँ पे क्या हुआ, स्पीशीज अपने आप को स्टेबलाइज कर चुकी हैं, सक्सेशन स्टॉप हो चुका है और क्लाइमेक्स कम्युनिटी तक पहुंच चुका है. सो दीज आर द 5 स्टेजेस ऑफ सक्सेशन. Now, concept of climax. Now, what is climax community? As I've told you, climax community is the final stage of succession. अब इसके बाद सक्सेशन नहीं होता है, सक्सेशन स्टॉप हो चुका होता है. A stable group of plants and animals, that is the end result of the succession process. तो see, यहाँ पे स्टार्ट कैसे हुआ, एनुअल प्लांट्स के थ्रू, देन ये प्लांट्स एंड ग्रासेस में ग्रो किया, then comes the shrubs stage, then comes the softwood pine stage, and then finally reaching the climax community, that is the hardwood trees. Now, what are the features of the climax community? सबसे पहले होगा हमारी स्लोअर ग्रोथ रेट हो जाती है. क्यों? क्योंकि क्या होता है कि जब हमारी ये पाइनियर स्पीशीज हैं, यानी कि जब हमारा सबसे पहली स्टेज में ये रहता है, तो हमारे कैसे रहती हैं स्पीशीज, स्मॉल साइज में रहती हैं, उसके बाद ये फास्ट होती हैं ग्रोथ में और ट्रीज में डेवलप हो जाती हैं. क्योंकि क्लाइमेक्स कम्युनिटी में ऑलरेडी हमारे पास फुल डेवलप्ड फॉरेस्ट है, तो उसमें क्या होगा, हमारे पास कोई ग्रोथ की कमी तो है नहीं, तो यहाँ पे किसी भी तरीके की ग्रोथ अब बची नहीं है होने को. दैट्स वाई स्लोअर ग्रोथ है. लार्जर साइज, यहाँ पे क्या होता है कि हमारे पास अर्ली या मेच्योर स्टेज, अर्ली स्टेजेस में क्या होता है, प्लांट्स छोटे छोटे से होते हैं, फिर क्लाइमेक्स कम्युनिटी में क्या हो जाते हैं, ये बड़े हो जाते हैं. तो क्या हुआ, हमारे पास बड़े साइज के स्पीशीज होते हैं क्लाइमेक्स कम्युनिटी में. लोअर रेट ऑफ डिस्पर्जल, जितना डिस्पर्जल होना था, कॉलोनाइजेशन हो गया उन स्पीशीज का. अब यहाँ पे क्या है, यहाँ पे तो फुल्ली डेवलप्ड कम्युनिटी, यहाँ पे ना सक्सेशन रुक चुका है, तो यहाँ पे किसी भी तरीके का कोई भी डिस्पर्जल नहीं होगा. लोअर रेट्स ऑफ कॉलोनाइजेशन, सिमिलर इज द केस, जैसे कि हमारे यहाँ पे स्पीशीज कॉलोनाइज कर चुकी हैं और फिर यहाँ पे क्या हुआ, यहाँ पे ये डेवलप हो चुका है क्लाइमेक्स कम्युनिटी. अब किसी भी तरीके कोई कॉलोनाइजेशन तो होगा नहीं क्योंकि सक्सेशन यहाँ पे स्टॉप हो चुका है. लॉन्गर लाइफ्स, जैसे कि हमारी आर सिलेक्टेड स्पीशीज थी और फिर क्लाइमेक्स कम्युनिटी में क्या हो गया, के सिलेक्टेड स्पीशीज है. ये हमारी स्मॉल प्लांट्स है, ये हमारे लार्जर प्लांट्स है, आर सिलेक्टेड स्पीशीज है हमारी, एंड देन के सिलेक्टेड स्पीशीज है. तो के सिलेक्टेड स्पीशीज की लाइफ हमेशा से ज्यादा होती है. Now, what are the succession in plants? Or what are the classification of plant succession? So in hydrosphere, hydrosphere क्या होता है, जहाँ पे वाटर
अमाउंट हमारा प्लेंटी में होता है, जैसे हमारा पॉन्ड्स हो गया, स्ट्रीम्स हो गया, लेक्स हो गया, स्वैम्प्स हो गया। मेसोस्फीयर कहाँ होता है, जहाँ पे मॉइस्चर कंडीशन एडिक्वेट होती है। जेरोस्फीयर कहाँ होता है, जहाँ पे डेजर्टिक एडेप्टेशंस होती है या जहाँ पे मॉइस्चर हमारा क्या होता है, मिनिमल अमाउंट में होता है, इसीलिए तो लीव्स अपने आप को स्पाइन्स में रिड्यूस कर लेती है। तो यही वाली कंडीशंस में क्या होता है, हमारा जेरोस्फीयर होता है ना। लिथोस्फीयर ये अकर्स होता है हमारे रॉक पे, हेलोस्फीयर हमारे सलाइन वाटर पे, जैम्नोस्फीयर सैंड पे। So most important is hydrosphere. So we'll discuss hydrosphere over here. So it starts with the phytoplankton stage, then occurs the rooted submerged, then rooted floating stage, reed swamp stage, sedge meadow stage, woodland, and finally reaching the forest stage. Now see, it would be more clear with this diagram. तो सबसे पहले क्या हुआ, हमारी प्लैंकटन स्टेज थी, ये स्टार्ट हुई प्लैंकटन स्टेज से। फिर धीरे धीरे क्या होता है इसमें कि हम सी शोर से लैंड की, सी से लैंड की तरफ आते जाते हैं। फिर यहाँ पे क्या हुआ, सबमर्ज्ड होने लगी, सबमर्ज से फिर क्या हुआ, फ्लोट होने लगी लीव्स हमारी, जैसे कि निम्फिया का एग्जाम्पल है आपका। तो ये क्या हुई, फ्लोट होने लगी। फ्लोट होने के बाद ये रीड स्वैम्प हुई, विच इज ऑल्सो नोन एज एम्फीबियस स्टेज। क्यों, क्योंकि इट इज ऑन हाफ ऑन लैंड एंड हाफ ऑन वाटर। तो ये हमारी क्या हुई, रीड स्वैम्प हुई। फिर मार्श मीडियो हुई, जैसे कि हमारे मार्शेस हैं, हमारे बॉग्स हैं, इसको रीच करेगी। देन वुडलैंड स्टेज, वुडलैंड की तरफ ये जाएगी। देन कम्स द क्लाइमैक्स स्टेज, finally reaching the climax stage. So these are the stages in hydrosphere. Now what are the trends in ecological succession? अब कौन कौन सी इकोसिस्टम कैरेक्टरिस्टिक्स है और कौन कौन से चेंजेस इकोलॉजिकल सक्सेशन के थ्रू देखे जाते हैं, विल गेट टू नो। तो फर्स्ट इज द फूड चेन। यहाँ पे क्या हो रहा है, सिंपल से मोर कॉम्प्लेक्स फूड चेन बनती है। रिलेटिव स्पीशीज अबंडेंस चेंजेस रैपिडली फर्स्ट, चेंजेस लोअर इन दी लेटर स्टेजेस। तो यहाँ पे रिलेटिव स्पीशीज अबंडेंस क्या होती है कि क्योंकि हमारे पास स्पीशीज कम है तो ये रैपिडली पहले चेंज होगी और फिर जब वो हो जाएगी, कॉलोनाइज हो जाएगी, मैच्योर स्टेज पे पहुंच जाएगी तो स्लो हो जाएगा इसमें रिलेटिव स्पीशीज अबंडेंस। टोटल बायोमास हमारा इंक्रीज करेगा, ह्यूमस हमारा इंक्रीज करेगा। स्पीशीज डाइवर्सिटी क्या होगी, अर्ली स्टेजेस में इंक्रीज कर, सॉरी अर्ली स्टेजेस में हमारी लो डाइवर्सिटी होती है, इंक्रीजिंग इन द इंटरमीडिएट स्टेजेस एंड फाइनली रीचिंग द इक्विलिब्रियम in the final stages, यानी कि यहाँ पे कम्युनिटी क्या हो गई, स्टेबलाइज हो गई है। So these are the trends in ecological succession. Now what are the mechanisms of succession? There are three mechanistic models as described by Connell and Slater in 1977. So these are facilitation, tolerance and inhibition. We will discuss one by one. So first is the facilitation model. Facilitation model में क्या होता है, pioneer species modify environment with time become less suitable for them and new species invade. तो यहाँ पे क्या हुआ, यहाँ पे स्पीशीज जो मौजूद है जैसे कि पाइनियर स्पीशीज हैं, इन्होंने क्या किया, एनवायरमेंट को मॉडिफाई किया ताकि न्यू स्पीशीज आकर के इन्वेड कर सके। जैसे सिमिलर इस केस लाइकेंस एंड मॉसेस हमारे प्रेजेंट है, उन्होंने क्या किया, एनवायरमेंटल कंडीशंस को मॉडिफाई किया ताकि ग्रासेस एंड श्रब फर्दर आकर के ग्रो कर सकें। Second is the tolerance model. Initial colonization by all species. Those tolerant of initial conditions become abundant. Then species tolerant of new conditions become abundant. यहाँ पे क्या होता है, यहाँ पे सबसे पहले सारी स्पीशीज ने आकर के कॉलोनाइज किया। फिर क्या हुआ कि इनिशियल कंडीशंस के अकॉर्डिंग कुछ स्पीशीज ने कॉलोनाइज किया, फिर उसके बाद जो नई कंडीशंस थी उनके अकॉर्डिंग स्पीशीज ने टॉलरेट किया और कॉलोनाइज किया। Therefore this model is known as tolerance model. Then comes the inhibition model. इसमें क्या होता है कि इनिशियल कॉलोनाइजेशन सबसे पहले सारी स्पीशीज ने किया, लेकिन क्या हुआ कि पहले से जो स्पीशीज मौजूद थी उन्होंने लेट अराइवल्स को होने नहीं दिया, यानी कि जो बाद की स्पीशीज है उनको कॉलोनाइज नहीं करने दिया या उनकी ग्रोथ को रोका। सो दैट्स व्हाई इट इज नोन एज इनहिबिशन मॉडल। सो हियर यू कैन सी इनिशियल कॉलोनाइजेशन बाय ऑल स्पीशीज, बट सम स्पीशीज मेक द एनवायरमेंट लेस सुटेबल फॉर अदर स्पीशीज, दैट इज अर्ली अराइवल्स इनहिबिट बाय लेटर अराइवल्स। अनलाइक फैसिलिटेशन मॉडल, क्योंकि यहाँ पे क्या हो रहा था कि पहले से जो स्पीशीज मौजूद थी वो दूसरी स्पीशीज के लिए जगह बनाती हैं। टॉलरेंस में क्या होता है कि टॉलरेट कंडीशंस करती हैं, ये कंडीशंस के हिसाब से टॉलरेट करती हैं। एंड इनहिबिशन में क्या होता है कि पहले जो स्पीशीज मौजूद रहती हैं वो क्या करती है, इनहिबिट करती हैं ग्रोथ को, ताकि जो लेट अराइवल्स हैं यानी कि जो बाद की स्पीशीज हैं वो आकर के कॉलोनाइज ना कर पाए। देयरफॉर दिस इज नोन एज इनहिबिशन मॉडल. So this is all we have for succession. I hope you all might have liked. If you have liked, then please do like, follow, subscribe and share Biology by My Way, and we'll meet in the next video. Till then, take care and goodbye.